Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 18th October 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. The first article that we have is with regard to the Citizenship Act. तो यहाँ पे दोनों न्यूज़पेपर्स में something about the Citizenship Act दिया है, so we're going to be understanding about this in detail. So firstly, what is the context? क्या हुआ है? तो एक recent केस हुआ था 4:1 मेजॉरिटी में ये जजमेंट दिया गया है. एक ही जज इससे सहमत नहीं थे, who was पारदीवाला. So this was with regard to a section called as Section 6A. So we're going to be seeing what is this Section 6A. Section 6A of the Citizenship Amendment Act 1955 ये कहता है that allows the Bangladeshi immigrants to get citizenship, okay, in Assam. तो आसाम में जो भी वो बांग्लादेश इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप के बारे में है, उनको कैसे मिल सकता है. सो दिस इज सेक्शन 6A. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इज द क्राइटेरिया? उनको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगा इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को? फर्स्टली, अगर वो जनवरी 1st 1966 से पहले आए हैं देन दे विल गेट इंडियन सिटीजनशिप. सेकेंड केस, अगर ये जनवरी 1st 66 से लेके मार्च 25th 1971 के बीच में आए हैं देन अगेन दे आर एलिजिबल अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं. सो देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट. इसमें तो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ प्रोसीजर होता है. एंड द थर्ड वन, अगर 1971 के बाद आए हैं मार्च 25th 1971 के बाद then they are not entitled to citizenship of India, right? So this is given in section 6A and ये अब केस था, सुनवाई हुई थी कि is this valid or not. So now this is yes, this is valid. This has been upheld with the 4:1 majority. So now we are going to see what is citizenship and the act and so on. तो citizenship का मतलब क्या है? It is a relationship between a citizen and the state. Citizen ये जो शब्द है, it is not defined in the constitution, but we understand about citizenship in part 2 of the constitution. Okay, part 2 article 5 से लेके article 11 talks about this citizenship, talks about this relation. सो इसी के वजह से वी अंडरस्टैंड सिटीजनशिप जो है ये एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है. दैट मीन्स किसके पास पावर होगा टू मेक लॉज? इट इज ओनली द पार्लियामेंट दैट कैन मेक लॉज विद रिगार्ड टू सिटीजनशिप. क्या आपके पास दो सिटीजनशिप हो सकता है, इंडिया और किसी और कंट्री का, मान लीजिए यूएसए का? नो. इंडिया ओनली अलाउज फॉर सिंगल सिटीजनशिप. Okay, there is no some citizenship of any other territory also. You just have one single citizenship. That is what we have. Now here, let us understand, because I told you कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने में with regard to citizenship. तो yes, इन्होंने लॉज बनाए हैं. कौन से हैं लॉज? देखते हैं. The first one is Citizenship Act of 1955. Okay, तो पहले बार 1955 में ये एक्ट बना था. Now this talks about the acquisition and termination of Indian citizenship. यानी कि it talks about कि किन reasons के लिए आप citizenship acquire कर सकते हैं. How can one become an Indian citizen? That is meant by acquisition. Termination का मतलब है कैसा आपका citizenship terminate, रद्द किया जाता है. That is termination. तो ये सब कहाँ पे बताया है? इस एक्ट के थ्रू. That is Citizenship Act of 1955. Now, let's understand acquisition कैसे. How can I become an Indian citizen? So these are the 5 ways that you can be a citizen, mainly by birth. Okay, अगर a person born in India, ठीक है, so again characteristic है कि you can get your citizenship. Descent, अगर आप इंडिया में born नहीं हो लेकिन आपके one parent is an Indian citizen, then you can also get, right? So ये एक second criteria है. Registration, if you are married to a person who is an Indian,
या अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हो और 60 साल आप रिजाइड करते हो इंडिया में, तो आपको मिल सकता है थ्रू रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि as long as the person is not an illegal migrant, okay, 12 साल वो रह चुका है इंडिया में and the last year 12 months continuous रह चुके हैं, तो then that person is eligible to become an Indian citizen, right? That is called as naturalization. And finally incorporation of territory. अगर वो पूरी territory हमारी इंडिया के अंदर आती है, right? So then of course those people who are residing in that territory automatically will become the Indian citizens according to incorporation of territory. तो ये 5 categories हैं to become an Indian citizen. The next part of Citizenship Act talks about termination. कैसे आपका citizenship रद्द किया जाता है? Okay, how can they take it away? Terminated. So पहला है renunciation. Renunciation का मतलब है आपने खुद से renounce कर लिया या खुद से अपने citizenship, Indian citizenship दे दिया. You don't want to be a part of India. You don't want to be a citizen of India. So खुद से अगर आप बोलते हो कि मुझे नहीं बनना, that is called renunciation. Second is termination. Now, अगर आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन बनते हो, then automatically आपका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट होता है. So you must have known about many people that have got citizenship of Australia or USA or Canada. तो तभी क्या होता है, उनका जो इंडियन सिटीजनशिप ये खत्म होता है. Now citizenship of course is so important. Why? Because you can then get the rights, political and civil rights. You are protected by it. So that is why we are looking at this protection and this law, this act to be very very important. Anyway, the third and the last aspect कैसे आपका रद्द हो सकता है citizenship is because of deprivation. अगर मान लेते हैं कोई फ्रॉड करके आपने citizenship लिया है, ठीक है, then you can be deprived of your citizenship. So that is another way that can be renounced or that can terminate your citizenship. तो ये 3 factors होते हैं, यहाँ पे 5 factors होते हैं. We have seen about citizenship. Now this particular act of 1955 has been amended how many times? 6 times. 6 बार ये amend हो चुका है. That means 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 and 2019. इसमें से जो भी most important है, ये last वाला है 2019 का. Let us have a quick look what exactly it says. So the Citizenship Amendment Act of 2019 says 6 communities, 6 minority communities, which are they? Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. Okay, now why am I saying these are minorities? Because these are minorities in the other states that we are talking about. Which are the 3 countries? Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, because they are Muslim majority countries, right? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान हमारे जो नेबर्स हैं, इनके ये 6 कम्युनिटीज, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस, इवन दो हिंदूज आर अ मेजॉरिटी इन इंडिया, दे आर माइनॉरिटी इन दीज कंट्रीज. तो इनको सिटीजनशिप कैसे अक्वायर कर सकते हैं, ये इस एक्ट के थ्रू अमेंड किया गया है. यहाँ पे बताया गया है, इफ दे हैव अराइव्ड बिफोर मार्च 31st 2014, इनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल सकता है. एंड इन्होंने लीनियंसी किया है, इसमें कुछ कम किया है कि जो रिक्वायरमेंट होता है रेजिडेंस का, इट इज अर्लियर 11 years, राइट. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 5 साल. ओके, सो दे हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स. ये जो रिक्वायरमेंट होती है इसको भी कम किया है. So this is with regard to Citizenship Amendment Act of 1955 and the following amendments. So पूरी तरह से हमने इसका डिस्कशन किया है and we have seen what is this today's article also. So let's now proceed to the next article. Next article है Chief Justice of India के बारे में. So हमारे जो 50th Chief Justice of India कौन है, जो करंट है वही है, that is D.Y. चंद्रचूड़, राइट. तो इन्होंने रेकमेंड किया है अगले CJI को. So he has recommended whom? He has recommended संजीव खन्ना. यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं. Now what is the
रोल ऑफ द CJI, लेट अस अंडरस्टैंड अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके पावर्स क्या है, एंड एवरीथिंग अबाउट इट. Okay, a question to you that you have to answer in the comment section. Who was the first Chief Justice of India? ये आप मुझे comment section में बताएंगे. Let's now understand firstly powers क्या हैं Chief Justice of India के. So firstly इनको कहते हैं Master of Roster. Why is he called this term Master of the Roster? It is because he is not only the administrative head of the courts, he's also called as the first among the equals. Okay, इनको ये एक power दिया जाता है, position दिया जाता है. But also he can sort of select or constitute the benches. कौन जज कौन सा केस हियर करेगा, ये सब भी कौन प्लान करता है, कौन डिसाइड करता है? It is the Chief Justice of India. तो अगर उनको एक आउटकम चाहिए, मान लो एक केस में, ही कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कौन से जज इस केस को हियर करेंगे, राइट, एंड ही कैन फेवर द आउटकम. इतना बड़ा पावर होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में. now that we've understood, yes, he's first among the equals, but appointment और सब देखते हैं, he's just another Supreme Court judge, right? So let us first see appointment कैसे होता है. फिर अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करता है, okay, like we have for the other judges also. It is the president of India that appoints the chief justice. And कौन से article के through? It is article 124 clause 2 of the constitution that talks about the appointment. तो यहाँ पे it is a norm that जो outgoing chief justice होता है, he recommends the next chief justice. So जैसे चंद्रचूड़ ने अभी रेकमेंड किया है संजीव खन्ना को. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक केस था, सेकंड जज केस ऑफ 1993. तो इस केस में बताया है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होता है, हु हैज मोर एक्सपीरियंस्ड, राइट, दैट पर्सन शुड बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ CJI. Okay, the senior most judges has to be appointed as the CJI. Now coming back to what is the qualification now? Qualification is same as a Supreme Court judge. यानी कि he should be a citizen of India. He should be a judge of the High Court for 5 years. High Court के judge का, let me write this properly. Okay, 5 साल High Court के judge बनने चाहिए, या 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट, है ना. दिस इज योर क्वालिफिकेशन. और इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. यही आपने किया होगा आपके पॉलिटी के क्लासेस में. सो दीज आर द 3 criterias फॉर क्वालिफाइंग एज योर judge and as a chief justice also. Now if you talk about कैसे हम appoint करते हैं the judges of the Supreme Court, it is the collegium system, right? तो collegium system कौन होता है इसमें? You have the Chief Justice of India and 4 other senior most judges of the court. Okay, so 4 + 1 ये decide करते हैं, ये recommend करते हैं, and that a person is given the, उनका recommendations दिया जाता है to the government जो appoint करते हैं president. अगर हम high court judges के बारे में बात करते हैं, so here you have the 2 senior most judges, right? So that is what is for the high court. For the Supreme Court, it is Chief Justice and 4 other senior most judges. High Court में वैसे ही you have the Chief Justice of High Court, Chief Justice of Supreme Court, I mean it's Chief Justice of India, and you also have 2 senior most judges. That recommends your High Court. But अभी हम Supreme Court के बारे में बात करते हैं, so let's focus here. The collegium system जो है, okay, this has evolved. Is it by a law या Parliament में बताया है? No, these have made mainly by the Supreme Court judge cases. आपने सुना होगा first judge case, second judge case, third judge case. So this is how this system has evolved. Government was trying to make a law. आपने सुना होगा 99th Constitutional Amendment Act.
99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस NJAC। ये क्या है NJAC? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसने कहा था कि अब गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी कौन होगा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट दिस विल अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट खुद सिलेक्ट कर सकती है जो उनके केसेस अच्छे से संभालेंगे, वो उनको ही अपना चीफ जस्टिस, उनको ही सुप्रीम कोर्ट जज बनाएंगे। सो दिस वाज ऑफ कोर्स अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसीलिए इसको रद्द किया था। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज कंसिडर्ड unconstitutional. And what is the system that we follow now? It is the collegium system. And if the question comes with regard to what is the strength of the Supreme Court, तो कितना है? It is 34 judges. इसमें से of course 33 plus 1, यानी 1 is your Chief Justice of India, and total maximum strength of your Supreme Court is your is basically 34. And कौन डिसाइड करता है कि कितना होना चाहिए? It is the Parliament by law can give you what should be the strength. So किसके पास ये power है to increase or to enhance or to reduce the number? It is the Parliament. So this is how we've seen the entire Chief Justice, okay, and अभी soon अपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि DY चंद्रचूड़ का जो रिटायरमेंट है इट इज ऑन द 10th of November, राइट? सो उसके पहले द न्यू वन विल कम एंड वी विल सी मोर अबाउट इट. Let's proceed to the next article, and this is with regard to fortification. So ये जो शब्द है fortification, what do you mean by it? Fortification का मतलब है when you add nutrients, it's addition of what? Nutrients to make it like a balanced diet. Okay? जब भी कोई कम मात्रा में nutrients है या nutrients है ही नहीं, तो आप वहां पे nutrients add करते हो so that it enriches your food with the necessary requirements of nutrients. So this process, it is not natural, it's artificial, है ना, क्योंकि आप खुद इसको ऐड कर रहे हो. यहाँ पे आप जाके वहां पे जो नेचुरली न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते, आपने ऐड किया है. सो दैट इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन. सो मोस्टली आप देखते हो राइस के लिए होता है, राइस का फूड फोर्टिफिकेशन. एंड राइस को यहाँ पे कोटिंग किया जाता है ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन. ठीक है, ऐसे करके एक मिक्सचर का आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो राइस में, which is beneficial for especially आयरन की बात करें, जो अनीमिया होता है, mainly women, every second woman has anemia. So इनके लिए ये काफी अच्छा है because हमको आयरन इनटेक को ज्यादा करना है. Even if you talk about, जैसे परसों के दिन we talked about World Food Day, October 16th, right? So यहाँ पे हम देखते हैं कि how bad the situation is with regard to the nutrient जो अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग. इंडिया का रैंक हमने देखा था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, न्यूट्रिएंट्स कम है हमारे बॉडी में एंड हमारा रैंक है 105. सो वी आर नॉट डूइंग वेल इन दिस रैंक एज वेल. तो इसमें यहाँ पे पुश करने के लिए ऑफ कोर्स दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज द फूड फोर्टिफिकेशन. तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो सेंटर कहता है ये जो फोर्टिफिकेशन हम करते हैं, इवन दो दिस इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये बहुत ही अच्छा है. ठीक है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है. सो दिस इज व्हाट द सेंटर से, एंड WHO भी इसको रेकमेंड करता है. WHO के गाइडलाइंस भी कहते हैं ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिस है. सो सेंटर भी कहता है यूटिलाइज मोर फोर्टिफाइड फूड, ताकि आपके फूड में इनटेक हो of the correct nutrients. So this is all the article that was about it. Let us proceed to the next article. नेक्स्ट आर्टिकल है मैरिटल रेप के बारे में. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल एस्पेक्ट. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैरिटल रेप, ओके, देयर इज द सेक्शन 375, ओके, जो है IPC का सेक्शन 375. यहां पे कहता है दैट द हस्बैंड्स हैव अ लीगल इम्यूनिटी in case of marital rape, as in the rape between a married woman and a man
कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेप। तो ये जो सेक्शन है 375 ऑफ आईपीसी हस्बैंड्स को इम्यूनिटी देती है अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट, ओके, अंडर दिस अंडर मैरिटल रेप इफ यू से। अगर हम BNS की बात करें, ऑफ कोर्स नाउ वी हैव BNS, भारतीय न्याय संहिता, इट इज सेक्शन 63, ओके। सो दिस इज समथिंग दैट यू टॉक अबाउट। सो अभी क्या हो रहा है, एक 3 जज बेंच है, ओके, हेडेड बाय हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ये एक्सेप्शन को चेक कर रहे हैं, क्या ये एक्सेप्शन, क्या ये लीगल इम्यूनिटी जो हस्बैंड्स को दी जा रही है, शुड इट बी गिवन और शुड इट बी रिवोक्ड, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्टेक्स्ट। नाउ कमिंग बैक टू दिस, यू मस्ट हैव आल्सो सीन दिस इन द रीसेंट टाइम्स, जब हम जस्टिस वर्मा कमिटी का रिपोर्ट देख रहे थे। डू यू रिमेंबर जस्टिस वर्मा कमिटी? दिस वॉज द केस आफ्टर निर्भया जो रेप केस हुआ था 2012। इसके बाद ये एक कमीशन आया था, कमिटी आई थी टू डिस्कस अबाउट लीगल रिफॉर्म्स इन सेक्सुअल ऑफेंसेस। सो इट टॉक्ड अबाउट डेथ पेनल्टी, इट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मैरिटल रेप। तो इस कमिटी ने कहा था कि मैरिटल रेप जो है इट इज अ क्राइम, बट क्या इंडिया में इज मैरिटल रेप अ क्राइम? No, marital rape is not considered as a crime. Now here it is said कि जो under 18 years का जो age है, okay, if the wife is under 18 years, then it is considered as a marital rape. Otherwise 18 years के above अगर है, then it will not be considered as marital rape. So this was with regard to a Supreme Court judge that judgment that it was brought about कि yes, okay, what is the age criteria, यहाँ पे उनको extend किया था सुप्रीम कोर्ट जज ने। पहला 15 था, फिर ये 19 बना दिया। Now let us see the origin of this marital rape. तो इसको हम marital rape exemption कहते हैं। So there is also another article, अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, in the explainer बहुत बढ़िया से बड़े आर्टिकल में बताया है। सो आई एम क्लबिंग बोथ दीज आर्टिकल्स एंड आई एम डिस्कसिंग इट विद यू। सो इन दैट आर्टिकल यू विल फाइंड दिस वर्ड MRE, which is marital rape exemption. Now where are we talking, where is the origin of this? There is the origin from the English law. English law कहता है doctrine of coverture. So एक doctrine है, doctrine of coverture. Now what is this doctrine of coverture? ये कहता है that you know after marriage the husband and the wife are a single entity, and the woman and the wife, she has to forgo her legal autonomy. उसको उसकी जो autonomy है इसको curtail करता है according to the doctrine of coverture. Okay, like for example, if you can put it as she is the husband's property. ये बताता है the doctrine of coverture which is given by the English law. वैसे अंग्रेजों ने तो इसको रद्द कर दिया था 1991 में, ओके, थ्रू अ जजमेंट R वर्सेस R करके एक केस आया था। तो 1991 में ये डॉक्ट्रिन अबॉलिश कर दिया था, ये MRE को अबॉलिश कर दिया था। बट इंडिया में ये अभी चल रहा है, इंडिया में ये अभी फॉलो हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स। ओके, तो अभी ये केस अभी भी इट्स स्टिल इन हियरिंग, बट वी विल जस्ट डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। सो योर पिटिशन कहता है, जिसने कहा है कि MRE जो एग्जेम्पशन है इसको हटाना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारा जो राइट है, द वुमेन का डिग्निटी, इसको प्रोटेक्ट करनी चाहिए। व्हाट इज द आर्टिकल्स दैट वी हैव हियर दैट आर अफेक्टेड ऑफ द वुमेन? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, ओके, या आर्टिकल 21। यू कैन टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो है ही, ये भी एड्स कर सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड इवन Article 21, okay, mainly the right to life and liberty, personal dignity, as well as with regard to privacy. So all of these aspects can be added ki why this should not be, the exception should not be there. On the other hand, जो सेंटर का स्टैंड है वो क्या है? सेंटर का स्टैंड है कि firstly, how can you prove that रेप हुआ है या नहीं? ओके, व्हाट इज, इट कुड बी इन अ फॉल्स एलिगेशन,
right? So proving something who are husband and wife, it's very difficult is what the center says. Apart from that, this will dilute the sanctity of marriage. ठीक है, marriage will not be considered as the alliance, the holy alliance that we talk about. तो ये center का stand है. तो हमने दोनों sides देखे हैं, सुने हैं, and now it is in the ball is in Supreme Court, right? Quite literally, कहाँ पे वो अभी जजमेंट देंगे कि क्या नया लॉज लाना है, क्या उसको डाइल्यूट करना है, क्या एक्सेप्शन को हटाना है, ये अभी हम देखेंगे इन द कमिंग टाइम्स. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द होल मैरिटल रेप एक्सेप्शन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. द नेक्स्ट आर्टिकल इज विद रिगार्ड टू स्मॉल न्यूज दैट इज रिसेंटली हमने देखा था चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, राइट? तो वैसे ही अभी रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस हुए हैं हरियाणा में. Who is appointed as the chief minister for the second term, in fact, that is Nayab Singh Saini. तो आपके वन लाइनर जैसे समझ सकते. Haryana has been in the news. Okay, the state that has given all the crops in MSP, है ना? ये हरियाणा हमने recently देखा है. So recently इनका इनफैक्ट कल के दिन में इनका oath ceremony था. He's been sworn in as a chief minister on the day of Valmiki Jayanti. Valmiki Jayanti, October 17. Valmiki has been, of course, a very revered author. Okay, he is told to compose the Ramayana. आदि कवि कहते हैं इनको, राइट? महर्षि. सो वाल्मीकि जयंती के दिन इनका यहाँ पे oath ceremony हुआ था. So the next article is with regard to direct tax share. Now this is a interesting article जो दिया गया है Indian Express में with regard to कितना हमारा contribution है, किस tax का ज़्यादा contribution है to the government's revenue. तो यहाँ पे आप देखते हो कि direct tax ज़्यादा contribute करता है to the total revenue. इनडायरेक्ट से भी ज्यादा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट फर्स्टली व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज द वन जहां पे आपके जो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ये डायरेक्टली पे करते हैं टू द एंटिटी. ओके, वेयर इट इज लेवीड डायरेक्टली ऑन योर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, और ये प्रोग्रेसिव होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोग्रेसिव? प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जितना ज्यादा आप कमाते हो, हाउ मच आर योर इनकम, उतना ज्यादा आपके टैक्सेस होंगे. तो कोई ज्यादा कमाता है उस पे ज्यादा टैक्सेस, कम कमाता है कम टैक्सेस. सो दैट इज योर प्रोग्रेसिव टैक्स. एंड एग्जांपल्स की बात करें, आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, है ना? तो अगर आपके पास जमीन है, लैंड है, बिल्डिंग्स है, उस पे भी टैक्स लगता है. सो दीज आर योर डायरेक्ट टैक्सेस. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स जो है, दीज आर द कॉमन टैक्सेस दैट आर लेवीड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूमर डायरेक्टली पे करता है. ठीक है, कंज्यूमर से लिया जाता है. सो दीज आर द इनडायरेक्ट. सो इट्स नॉट लेवीड ऑन अ पर्सन, यू कैन से ऑन एन इंडिविजुअल, और प्रॉफिट्स में आप इसको के वजह से आप इसको टैक्स नहीं कर रहे हो, कंजम्पशन की वजह से आप इसको टैक्स करते हो. सो दैट इज योर इनडायरेक्ट टैक्स. एंड द मोस्ट कॉमन वन इज ऑफ कोर्स योर जीएसटी. यू ऑल्सो हैव योर वैट, है ना? अल्कोहल टैक्सेस में होता है जैसे वैट होता है. सो दीज आर योर इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस दे आर लुक्ड आफ्टर बाय और दे एडमिनिस्टर्ड बाय CBDT, जो है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और indirect taxes are ruled by CBIT. Okay, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs. Okay, CBIT, CB. So this is your basic difference between direct and indirect. अभी question है कि what is the important points that we have to know from this passage? तो यहाँ पे मैंने कुछ points दिए गए हैं, उतना ही आपको करना है. First thing, direct taxes कितना इसने contribute किया? I told you that is more than indirect. It is about 56.7%. तो इनडायरेक्ट कितना हुआ? माइनस कर लो, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 43%. ओके, सो ज्यादा शेयर हमारा डायरेक्ट का होता है. तो आपके जो पेरेंट्स टैक्सेस भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, है ना? कंपनीज होगी आपकी, तो कंपनीज में भी हम देखते हैं वो भी भरते हैं टैक्सेस, तो उसका.
बट अगर हम देखें डायरेक्ट में भी कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इट इज द इनकम टैक्स। योर पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इनफैक्ट दिस इज द सेकेंड ईयर जहां पे पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। आइडियली इफ यू सी इट वाज अ कॉर्पोरेट टैक्स ओनली, द कंपनी ज्यादा पे करते थे, बट सरप्राइजिंग है कि पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। Further, there is also something known as direct tax to GDP ratio. So that means it's nothing but tax upon GDP. This is your understanding. This is your what is direct tax to GDP. अब ये क्या बताता है? अगर आपका ये जो रेशियो ज्यादा होता है, that means the country has a healthy financial state and you have to do less on borrowings. आपके पास enough taxes है, enough collection हो रहा है. So that means your this ratio, this number should be higher, है ना, कि आपका taxes ज़्यादा होना चाहिए. So this is 6.64%. So it's higher is what they are saying in the last 20 years. ये बहुत काफी ज्यादा हाई है, बट ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में स्पेसिफिकली बताया है. नेक्स्ट इज टैक्स बॉयंसी. टैक्स बॉयंसी ये कहता है, इट्स अ मेजर कि आप जितना टैक्सेस बढ़ाते हो क्या वो रिफ्लेक्ट करता है आपके नेशन के इनकम में. दैट इज व्हाट इज द टैक्स बॉयंसी. सो इफ आई एम इंक्रीजिंग द टैक्सेस, is it increasing my GDP? If it is, then this says that yes, the state of the financial is very good. Country का जो finances है बहुत अच्छा है. So अभी जो हम buoyancy देखते हैं 2.12%, पहले कम था. पहले जितना हम बढ़ाते थे उतना ज्यादा इन नेशनल इनकम में ट्रांसलेट नहीं होता था. So then it cannot say that the country is not enough tax buoyant. Okay, so this is what you mean by buoyancy. जितना बढ़ाया टैक्सेस उतना हमारा जीडीपी भी बढ़ा. That is what it is. Okay, and कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होता है? That is महाराष्ट्र. तो ये आपको फैक्ट याद रखना है. Now, I told you कि डायरेक्ट टैक्सेस कौन एडमिनिस्टर करता है? It is the Central Board of Direct Taxes. Okay, Central Board of Direct Taxes. So this was a statutory body, law से बना है. कौन से एक्ट से बना है? It is the Central Board of Revenue Act 1924. ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस के अंदर. So this is with regard to your entire article with regard to direct taxes. Let's proceed to the next article. Now this is with regard to some international news, some one-liners important. तो यहाँ पे कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू इंश्योर वेज प्रोटेक्शन? इट इज द सऊदी अरेबिया. तो इनका एक विजन है, विजन 2030. ओके, इसमें दे आर इंश्योरिंग प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सपैट वर्कर्स. एक्सपैट का मतलब है जो बाहर की कंट्री से आते हैं काम करने में, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स, राइट. सो दीज इनका जो प्रोटेक्शन है, वेज प्रोटेक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके लिए बेटर लाइफ देने के लिए वी हैव सऊदी अरेबिया, जिसने लॉन्च किया है अ प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म का नाम है, इट्स कॉल्ड मुसानेद. ठीक है, अगर पूछेंगे तो याद रख लेना, मुसानेद इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट इज टू इंश्योर जो भी ये ऐप में, इस ऐप में क्या बताएगा, इस पोर्टल में क्या बता रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, विद द माइग्रेंट वर्कर, विद द एक्सपैट, ये पूरा इस प्लेटफॉर्म में बताया जाएगा. आपके जो भी हेल्थ बेनिफिट्स है, आपका इंश्योरेंस है, ये भी इस ऐप के थ्रू लिंक होगा. फर्दर ये जो माइग्रेंट वर्कर है, इनको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, स्टेटस है, जो भी है, ये पूरा इस ऐप के थ्रू. सो इवन जो उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, ये भी इस ऐप के दिखा जाएगा. सो इट्स अ वेरी यू कैन से फॉरवर्ड ऐप फॉर क्रिएटेड बाय सऊदी अरेबिया टू इंश्योर कि जो वर्किंग कंडीशंस है मेनली ऑफ द फॉरेन वर्कर्स जो उनकी कंट्री में आ रहे हैं, उनकी लाइफ स्टेबल करने के लिए, है ना. सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय सऊदी अरेबिया. Let us now proceed. Okay, before I go to the next article, a question to you. इंडिया ने भी ऐसा कुछ अग्रीमेंट माइग्रेंट वर्कर्स के बेनिफिट के लिए एक उन्होंने प्लेटफॉर्म रखा है,
What is the name of the platform? A hint to you कि यहाँ पे सिर्फ एशियन कंट्रीज होते हैं. So you are going to tell me in the comment section. What is the name for the benefit of the migrant workers? What is the platform that the government has created or the government has joined? So you have to tell me in the comment section. Let's proceed to the next article. The next article is with regard to surrogacy. ये जो शब्द है surrogacy, इसका मतलब क्या है? Surrogacy means a process जहां पे एक वुमेन किसी दूसरे का बच्चा कैरी करती है. ओके, किसी दूसरे कपल का बच्चा कैरी करती है बिकॉज प्रोबेबली दे कैन नॉट कंसीव. सो दिस इज कॉल्ड एज सरोगेसी. क्या इंडिया में सरोगेसी अलाउड है? इंडिया में सरोगेसी रूल्स 2021 के अंडर सरोगेसी इज अलाउड, बट कमर्शियल सरोगेसी अलाउड नहीं है. इसका मतलब है कि एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड. एल्ट्रुइस्टिक का मतलब है नॉट फॉर मनी, मॉनेटरी गेन्स शुड नॉट बी देयर. ओके, आप विदाउट इट. नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस? ताकि एक्सप्लॉइटेशन ना हो. ऑफ कोर्स पीपल फाइंड लूप होल्स. ओके, दिखाते नहीं कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, दे कैन डू दैट एज वेल, राइट? सो ये तो लूप होल्स फाइंड करते हैं ऑफ कोर्स, बट इंडिया में स्पेसिफिक अगर पकड़े जाओगे दिक्कत होगी. सो एल्ट्रुइस्टिक्स यहाँ पे सरोगेसी है, एंड दीज लॉज आर टू इंश्योर द सरोगेट मदर जो कैरी करती है बच्चे को, डिलीवर करती है, उसका राइट्स, उसको वाइल्डली एक्सप्लॉइट ना करे कोई, और जो बच्चा है राइट, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव दीज रूल्स दैट आर देयर. फर्दर ओनली जेस्टेशनल सरोगेसी इज अलाउड. अभी ये शब्द क्या है? जेस्टेशनल सरोगेसी का मतलब है कि यहाँ पे जो एग और स्पर्म होता है उससे ही बच्चा होता है, उससे ही जाइगोट फॉर्म होता है, राइट? तो इसमें जो महिला है हु इज गोइंग टू कैरी एंड डिलीवर द बेबी, उसका एग विल नॉट बी यूज्ड. सो इट इज ओनली द कपल हु वांट्स द बेबी, उसका ही एग एंड स्पर्म विल बी यूज्ड. ठीक है? सो जेस्टेशनल, ओनली जेस्टेशनल सरोगेसी इज अलाउड, एंड यहाँ पे अल्ट्रुइस्टिक यानी कमर्शियल कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. कमर्शियल नॉट अलाउड, यानी कि इफ यू हैव योर फैमिली मेंबर हु इज डूइंग दैट इज अलाउड. नो मॉनेटरी गेन्स. सो यस, सरोगेसी इन दिस केस इज अलाउड एंड ओनली फॉर मैरिड वुमेन. ओके, अगर कोई मैरिड कपल है या कोई पहले मैरिड रह चुकी है, मान लेते हैं कि वो डिवोर्सी है या विधवा है, विडो है, तो वो अगर बच्चा नहीं कर सकती है, देन शी कैन आस्क फॉर सरोगेसी. बट लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन कपल्स, अगर आप ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, अगर LGBT कम्युनिटी के हो, नो, देन सरोगेसी इज नॉट लिस्टेड हियर. Okay, even a single woman can't opt for this, can't ask for them to undergo surrogacy. में वो ask नहीं कर सकती है to have the baby. So these are the rules that are in India. Limited, लेकिन surrogacy है. But Italy, okay, you will think that European country, Western country, high-fi होते हैं, modern होते हैं. यहाँ पे surrogacy illegal है. Okay, so this is something that you have to remember. Surrogacy is illegal in India, Italy. तो अभी इन लोग क्या कह रहे हैं? अभी ये जो है ये फर्दर क्रिमिनलाइज कर रहे हैं कि आप बाहर जाके भी surrogacy नहीं कर सकते हो. So they have criminalized even going. So most of the couples do that. ये इंडिया अब इटली में नहीं है तो चलो बाहर किसी कंट्री में, जैसे कि यूएस में इन फ्यू स्टेट्स surrogacy is allowed. तो आप वो प्रोसेस करते हो और बच्चा लेके आते हो, है ना? तो ये अभी कह रहे हैं कि नहीं, आप ये भी नहीं कर सकते. सो दिस वाज द होल कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड टू सरोगेसी एंड रीसेंट कॉन्टेक्स्ट विद रिगार्ड टू वर्ल्ड न्यूज. सो दिस इज विद रिगार्ड टू आज के पेपर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखे हैं. डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स. थैंक यू.